ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਔਲਖ ਸ਼ਰਮਾ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਟਲੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਨਚੰਦਾ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਪਈ ਰੇਡ, GST ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆਰੋਪ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਚਕਾ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਜੀਠੀਆ ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ कि वो किसी भी हालत में खामोश नहीं रहेगी। बेसिकली इसमें क्या है, मेरे मतलब इसमें सिर्फ राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। जो अमित शाह जी ने किया वो भी राजनीति की, वो क्योंकि अब पंजाब में क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार के अब उनको डर लग रहा है। जैसे आपने देखो दिल्ली में जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार, उन्होंने AC भी रात के 12 बजे जाके कब्जे में कर ली थी। अब वो धीरे धीरे पंजाब की पावर्स कम करेंगे। जैसे दिल्ली में LG बिठा दिया और ये नहीं, मैं बता रहा हूँ, अब ये पंजाब में हर एक चीज़ में टांग अड़ाएंगे। तो सबसे पहले टांग अड़ाने का काम है कि पंजाब के रूल जो है चंडीगढ़ पे एप्लीकेबल करने से हटा दिए, ताकि पंजाब को धीरे धीरे वो कमज़ोर करते हैं। बेसिकली हम प्रोटेस्ट जनता की तरफ से करना चाहते हैं। जनता को हम आह्वान करते हैं कि जनता भी आए और जितनी RW जो है, फोर्सबैक है और जितनी संस्थाएं वो भी हमारा साथ दें। हम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का भी आह्वान करते हैं कि वो भी हमारे साथ आकर कंधे से कंधा मिलाकर इसके ऊपर प्रोटेस्ट में हमारा साथ दें। और ये अगर पानी के रेट नहीं बढ़ाए जाते तो आपकी तरफ से क्या ऑप्शन है? आपने बीजेपी को दिए थे कि पानी के रेट बढ़ाए? नहीं, हमारी ऑप्शन या हमारी मांग एक ही है कि इस मुद्दे को म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हाउस में लाया जाए, उसमें डिस्कस किया जाए और जो भी उसका फैसला होगा, 35 के 35 काउंसिल जो कि जनता के नुमाइंदे हैं, वो जो भी फैसला करें, चाहे रेट बढ़ाएं चाहे कम करें चाहे सेम रखें, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन को वो मान रहे। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के एक आर्म है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं जनता को। जनता के आप बिल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते। या तो रेफरेंडम कर लें, जनता से पूछ लें, अब साइट पे डाल दें और जनता से ओपिनियन लें कि क्या रेट होना चाहिए। जो जनता कहते ठीक है। नहीं, हम कल को कर रहे हैं, कल को 11 बजे का है। कल 11 बजे नहीं, कल हमने कुछ वार्डों में किया था प्रोटेस्ट कल शाम को, और कल को हम करेंगे सेक्टर 17 में शिवालिक होटल की साइड पार्किंग में, वहाँ से लेकर। उधर चंडीगढ़ नगर निगम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ BJP ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਅਫਸਰ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਯੋਗੇਸ਼ ਢਿੰਗਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। इसमें सर पूरी सच्चाई है। हम पूरा मैम को भी बोला था, कमिश्नर मैम को भी बोला कि हमारे जो वोट्स हैं उसमें थोड़ी डेवलपमेंट कम हो रही है। बाकी अगर आप BJP के साथ कंपेयर करें तो उधर काम ज़्यादा हो रहे हैं। हम किसी भी ऑफिसर को फ़ोन करते हैं
हमें कोऑपरेट नहीं किया जा रहा, पब्लिक परेशान हो रही है, बार बार ये इशू है, लोग परेशान हो रहे हैं। 4 महीने की पुरानी कंप्लेंट्स है, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। पब्लिक कभी हमारे पास आती है, कभी ऑफिसर से मिलती है, तो बड़ी कोऑर्डिनेशन करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं उनके वार्ड में भी जैसे बीजेपी और कांग्रेस के वार्ड में काम हो रहा है, वैसे ही हमारे वार्ड में भी काम हो। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅੰਜੂ ਕਾਤਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। हमारा काम है जनता की जो डिमांड है वो हम कमिश्नर मैम के आगे रखते हैं। वो उनका फ़र्ज़ बनता है वो पार्शियल ना होकर सारे वार्ड्स के इक्वल काम करवाएं। और वैसे हमें कमिश्नर मैम से कंप्लेंट है भी नहीं, वो रेगुलर करवा रहे हैं, पर कई वार्ड्स में ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये कमिश्नर मैम को देखना चाहिए। क्योंकि जो डेवलपमेंट का काम है वो लोगों का होता है और लोग हमसे जुड़े हुए हैं, इसलिए वो आपको बोलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनके सामने हमें रिप्लाई देना पड़ता है। अगर हमारे काम नहीं होते हैं तो हमें उनको रिप्लाई देना मुश्किल हो जाता है कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है। सफाई कर्मचारी जो हैं मेरे वार्ड में जो है सफाई की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मैं डे बाय डे उनसे अपडेट लेती रहती हूँ। कल भी मैंने उनके साथ मीटिंग की है लायंस क्लब के साथ, जिसको भी ये मिला है, पर वहाँ पे सफाई की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कल मेरे को उनके साथ मीटिंग करनी पड़ी और उनसे लेना पड़ा कि आप ये रेगुलर सफाई होनी चाहिए। क्या आपको लगता है जो अफसर है एमसी के वो बीजेपी नेताओं के प्रेशर में इसलिए ऐसा करते हैं कि उनके काम को प्रेफरेंस दी जाती है? अभी अफसरशाही चल रही है, ये उन्हीं के अंडर डिसीजन चल रहे हैं। कई ऐसी इश्यूज़ हैं जो हमारे सॉर्ट आउट नहीं होते हैं। वो अगर मेयर मैम हमें आश्वासन देती है कि ये काम हो जाएगा और वो नहीं होता, तो आप कहेंगे कि कमिश्नर और मेयर मैम लोगों की भलाई के लिए काम करें और ऐसे मुद्दे हम उठाते रहेंगे? हम अपने मुद्दे उठाते रहेंगे। ये डिसीज़न उनका है कि उन्होंने पार्शियल ना होके पार्टी लेवल को छोड़कर ये सोचे कि जैसे हम ये सोचते हैं कि अगर हम काउंसलर बने हैं तो हम किसी वार्ड के लिए हम ना बीजेपी के हैं, ना कांग्रेस के हैं, ना आम आदमी पार्टी के, हम काउंसलर हैं, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। ऐसे ही मेयर मैम को होना चाहिए कि सबके लिए इक्वल होना चाहिए। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨਚੰਦਾ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਰੇਡ ਪਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਰੇਡ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰੇਡ ਪਈ। नॉर्मल पब्लिक क्या करिए, हमने तो बच्चे पढ़ाने हैं, हमारी तो मजबूरी है। बट सबकी अगर कॉमन बुक्स होगी तो इशू कहीं भी नहीं आएगा, किसी भी दुकानदार के पास बुक्स मिल सकती हैं। रोज तेल खर्च के ये तीसरा चक्कर है। 2-2 घंटे लाइन में खड़े होकर गए हैं, हमें बुक्स नहीं हुई। बंदा ऑफिस जाए, घर के काम करे या बुक्स खरीदने में 4 दिन स्पेंड करे, आप ये बताओ। सर एक जगह तो मिलनी नहीं चाहिए, सारी जगह तो मिलनी चाहिए। हुण ते कल असीं आए सी 215 नंबर सी, 5 बजे तक 215 नंबर नहीं आया सी। छोटा जिहा बच्चा मेरे नाल एक ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੇਡ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 19 ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੀਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ GST ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਪੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੈਕਿੰग ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। स्कूल वाले नहीं बोलते अपने मुंह से कि आप यहाँ से खरीदिए बुक्स या यहाँ से खरीदिए ड्रेस, लेकिन पूरे चंडीगढ़ मोहाली पंचकुला में एक ही दुकान पे ड्रेस अवेलेबल है और एक ही दुकान पे बुक्स अवेलेबल है। सो ये पेन एरिया मनमाने रेट है, एक ही जगह पे अवेलेबिलिटी है और कहीं है नहीं। आप पता कर लो कहीं पे भी। मैंने 10 दुकानों पे फ़ोन किया, उनके पास मेरे बच्चे के स्कूल की बुक्स है ही नहीं है। हम 3 दिन से और 4 दिन से आ रहे हैं जी शॉप पे, टोकन मिल रहा है, फिर किताबें नहीं मिल रही, इतना ज़्यादा रश है। और ये पता नहीं क्या एक ही बुक शॉप से मिल रही हैं जो बुक्स हैं ये स्कूल्स की। तो ये चाहिए कि सारी बुक्स मतलब सारी शॉप्स पे ये बुक्स जो है मिलनी चाहिए। ये पता नहीं क्या रीज़न है, या कमीशन का रीज़न है, कौन सा रीज़न है जो ये बुक है एक ही शॉप से मिल रही हैं।
तो ये सारी जो है उन पे बुक्स मिलनी चाहिए सारी शॉप्स में। ਸਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ 215 ਨੰਬਰ ਸੀ, 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 215 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਦਮੀ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ? ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। हर एक स्कूल की डिफरेंट बुक्स है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन हर एक स्कूल की कॉमन बुक्स करते तो इशू कभी नहीं आएगा। एनसीईआरटी कोई भी करे, वट जो भी करनी है उन्होंने कोई सी भी करे, बट सबकी अगर कॉमन बुक्स होंगी तो इशू कहीं भी नहीं आएगा। किसी भी दुकानदार के पास बुक्स मिल सकती हैं। ये सबसे बड़ा इशू है। मिलती यहीं पे इसलिए हर साल 2 साल बाद बुक्स चेंज हो जाती हैं, फिर आओ आप फिर दोबारा लेके जाओ। पिछले पुराने बच्चों को भी नहीं यूज़ कर सकते। ये सबसे बड़ा इशू है। मान लो मेरे 2 बच्चे हैं, एक क्लास का डिफरेंस है, तो मैं कुछ ना कुछ सिलेबस अपग्रेडेड हमेशा इन्होंने चेंज करनी है। पब्लिशर चेंज हो जाएगा, सिलेबस चेंज हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में ऐसा नहीं है, वो कॉमन बुक्स चलती रहती है हमेशा। सेम प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं हो सकती? मेन जो सुपीरियर बैठे हैं, जब तक वही डिसीजन नहीं करेंगे, उनके ऊपर स्ट्रिक्टनेस नहीं करेंगे, तो नॉर्मल पब्लिक क्या करेगी? हमने तो बच्चे पढ़ाने हैं, हमारी तो मजबूरी है। 2-3 ਬੁੱਕਸ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਬਈ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਸ਼ਾਪ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ? कितनी देर होगी खड़े ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। वेट करोगे? ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਓਪਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣ, ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਥੋੜੀ ਕਮਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਰੜ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ। ਸਭ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। हम लोग परसों से आ रहे हैं कंटिन्यूस, कल भी आए थे, बट टोकन पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे। उनको डिवाइड कर देना चाहिए ना, और बुक स्टोर्स भी हैं, उनको भी बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए वहाँ पे हर स्कूल में। पूरे चंडीगढ़ मोहाली में और कहीं अवेलेबल नहीं है बुक्स, यहीं पे आना पड़ रहा है। मोहाली से रोज़ तेल खर्च के, डीजल का रेट देखो कहाँ जा रहा है, रोज़ तेल खर्च के ये तीसरा चक्कर है। 2-2 घंटे लाइन में खड़े होकर गए हैं, हमें बुक्स नहीं मिली। ये बुक्स जो हैं ये कम से कम 3 या 4 दुकानों में या 5 दुकानों में पूरी ट्राई सिटी में अवेलेबल करानी चाहिए, ताकि हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने घर के आसपास से बुक्स ले पाएँ। हमें डिस्काउंट की लालसा नहीं है, लेकिन टाइम ना वेस्ट हो। अब बंदा ऑफिस जाए, घर के काम करे, या बुक्स खरीदने में 4 दिन स्पेंड करे, आप ये बताओ। यूनिफॉर्म में हमने लाइन में लग के धक्कों में खड़े होके तब बच्चे के साथ खा के ये कोई राशन की लाइन थोड़े लगी है सर, ये राशन की लाइन नहीं है, ये बुक्स की लाइन है। राशन के लिए थोड़ी लाइन लगा रहे हैं। दिल्ली में जब कर सकते तो ये भी तो यूनियन टेरिटरी है, डिस्काउंट के लिए थोड़े है, ये तो हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज हैं जो कि प्रशासन पूरा नहीं कर पा रहा। बच्चे के साथ खड़ना बड़ा मुश्किल है जी, वेरी हार्ड कि भी बच्चा साथ में, और 2-2 4-4 घंटे लाइन में लगो, और फिर बारी ना आए, फिर अगले दिन आओ, फिर बारी ना आए, फिर उससे आज मेरा तीसरा डे है जी यहाँ पे। आज मुझे ये 90 नंबर मिला है जी, आप देख सकते हैं 90 नंबर मिला है, और अभी 48 नंबर चल रहा है, तो ये कम से कम 2-2.5 घंटे तक बारी आएगी जी, कम से कम। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਮਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। मनचंदा बुक शॉप में चंडीगढ़ प्रशासन की रेड पड़ी है। ये मनचंदा बुक शॉप की, ये देख सकते हैं आप, 2 दुकानें हैं, इनमें से एक दुकान में आपको शटर बंद रहेगा। इसमें अधिकारी अंदर हैं और जांच कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि लगातार जो चंडीगढ़ प्रशासन का टैक्सेशन डिपार्टमेंट है वो इसकी जाँच कर रहा है, क्योंकि मनचंदा बुक शॉप पर लगातार कैश ही लिया जाता था, और अगर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट करता था तो उसे कहा दिया जाता था कि ये दोनों मशीनें ख़राब हैं, ओनली कैश लिया जाता है, और इसमें गड़बड़ी की संभावना है, जिसको लेकर चंडीगढ़ प्रशासन के अफसर यहाँ पर जांच में जुटे हैं और लगातार 1 घंटे से अंदर जांच कर रहे हैं। भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़। उधर मोहाली जुडिशियल अकेडमी के बाहर एक हादसा हो गया। अचानक ही एक ट्रक पलट गया, जिस दे करके ट्रक दे विच सवार एक ड्राइवर ते कंडक्टर बुरी तरह दे नाल जख्मी हो गए। लोकां दी मदद दे नाल उन्हां नूं बाहर कढिया गया। इस वेले की बड़ी खबर मोहाली जुडिशियल अकेडमी के सामने पलटिया ट्रक पलटन नाल ड्राइवर ते कैलेंडर के घायल होने की मिली सूचना। मोहाली सैक्टर 91 के सामने होया हादसा। राहगीरां वालों ड्राइवर ते कंडक्टर नूं कढिया गया बाहर। राहगीरां ने दित्ती पुलिस नूं हादसे की सूचना। राजपुरा तो ट्रक लैके आ रहा सी मोहाली ट्रक चालक। ट्रक दे विच लोड सी लाखां दा समान, पर नहीं होया कोई जानी नुकसान। इस वेले तुसीं नाल दी नाल तस्वीर
ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਲਟ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਾਦਸਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਪਲਟਣ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਲਈ ਘਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੂਹ ਕੰਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੰਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। रुख मौसम का कर लेने तो दस देने ਤੁਹਾਨੂੰ कि तापमान की कहता है। वैसे गर्मी हैगी है जिहड़ी ਉਹ दिन ब दिन ਵੱਧਦਾ ही जा रही है। पारा हर दिन ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਪਮਾਨ ਅੱਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 38.0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 17.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਨਮਸਕਾਰ।